Hello students, welcome to my channel Learn English with Geeta ma'am. Today we are going to do second chapter from book Beehive class 9th. The title of this chapter is The Sound of Music. This chapter has two parts. Today we are going to deal with part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. We can get an idea about the chapter that it is about Evelyn Glennie, and she is a character who listens to sound without hearing it. But it looks a bit strange. How can one listen to any sound without hearing it? Actually, Evelyn Glennie is a deaf girl, but she fought against her physical disability and turned her dream true. She wanted to become a musician and she could achieve that. So it is said that Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. Let's read the chapter. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. The scene is set on a underground train platform. It is told that it is the time when there was a lot of rush and crowd was jostling each other. Jostling means push roughly. Crowd was jostling each other for position to get place on that underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited. This is about Evelyn. Slight means small and thin. So Evelyn's appearance is told here that she looked small and thin, looking younger than her 17 years, and just because of her small and thin appearance, वो अपनी जो 17 years की जो actual age है उससे काफ़ी छोटी लगती थी. Was nervous yet excited. अब वो nervous भी थी और excited भी थी. क्यों? Let's read further. As she felt the vibrations of the approaching train. उसने नर्वस और एक्साइटेड कब फील किया? जब उसको अप्रोचिंग मतलब पास आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस को उसने फील किया. दैट मीन्स शी इज़ स्टैंडिंग एट अ प्लेटफॉर्म, शी इज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन, और जैसे ही उसको अप्रोचिंग ट्रेन की वाइब्रेशंस फील होती हैं, शी स्टार्टेड फीलिंग नर्वस एंड एक्साइटेड. वाई? It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. Means she was moving to London and to the Royal Academy of Music there, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. So it is told that she belonged from Scotland. She belonged to Scotland, and for any girl, any teenager who comes from such countryside. Actually, Scotland is a place where 80% of the land area is agricultural land and farms are there. So it is like a small place. The life there is not as fast as the life in London. So any teenager who comes from such a simple place and moving to London could feel that nervousness. So she was feeling nervous. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब उस लड़की के लिए जैसे ये फ्राइटनिंग था, डॉन्टिंग का मीनिंग दे रखा है फ्राइटनिंग या स्कैरी, ये बहुत एक फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस था दैट शी वाज मूविंग टू लंदन अलोन. लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज जो उसके लिए था वो था अपनी डेफनेस को फाइंड करना. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. शी कुड नॉट हियर एट ऑल. सो now we can understand she was nervous because she was moving from a Scottish farm to London, and she was excited because she was going to capture her dream. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. Now it is told here by her mother that Evelyn's loss of hearing had been gradual.
इट वॉज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, बहुत धीरे धीरे से उसका ये लॉस ऑफ हियरिंग जो है कंप्लीट अकर हुआ। उसकी मदर याद करती हैं कि उन्होंने ऐसा नोटिस करना कि उसकी हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तब उन्होंने शुरू किया जब व्हेन शी वाज 8 इयर्स ओल्ड, और एवलिन का पियानो परफॉर्मेंस था। शी हैड बीन वेटिंग फॉर हर टर्न ऑल्सो, बट इवन आफ्टर बीइंग कॉल्ड her name was being called out again and again, but she did not move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. Isabel Glennie is the name of Evelyn's mother. Now she says that I suddenly realized, तब उन्होंने realize किया कि उससे कुछ सुना ही नहीं था. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉर क्वाइट अ टाइम मतलब कुछ टाइम तक तो एवलिन मैनेज कर पाई. कंसील का मतलब होता है टू हाइड, टू कीप इट अ सीक्रेट. हाइड कर पाई अपनी डेफनेस को अपनी फ्रेंड से, बट टीचर से, फ्रेंड से हाइड कर पाई. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 ईयर्स की हुई, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, उसके मार्क्स जो हैं वो कम होने लगे, ठीक है, उसकी ग्रेड्स जो हैं वो कम आने लगी. एंड हर हेड मिस्ट्रेस urged her parents to take her to a specialist. अब जो उनकी हेड मिस्ट्रेस हैं, उन्होंने उनके पेरेंट्स को, एवलिन के पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया. अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट. सो दे रिक्वेस्टेड टू एवलिन्स पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब उन्हें पता चला, the specialist told them that her hearing was severely impaired. ऐसा क्यों हुआ था? Gradual nerve damage. Gradual मतलब slow, तो slowly जो उसका nerve है वो damage हो गया था. That's why she turned deaf. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Now, the specialist advised to the parents that she should be fitted with hearing aids, कि एवलिन को जो है hearing aids की ज़रूरत है, and she should be sent to a school for the deaf. नॉर्मल बच्चों के साथ वो नहीं पढ़ सकती. she should be sent to the school exclusively made for the deaf children. Everything suddenly looked black, says Evelyn. Evelyn कहती हैं कि ये सब सुनने के बाद में उनके चारों तरफ, look black का मतलब है she felt darkness all around. ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह वो अपनी एक्टिविटीज़ को सब बच्चों के साथ में मिलके शेयर करते हुए शी वॉज लिविंग हर लाइफ इन अ वेरी हैप्पी मूड. बट सडनली शी टर्न डेफ एंड नाउ शी हैड टू मूव टू अ स्कूल स्पेशली मेड फॉर द डेफ चिल्ड्रन. सो एवरीथिंग टर्न ब्लैक फॉर हर. But Evelyn was not going to give up. Here it is told that Evelyn was very much determined. She did not give up. Give up का मतलब होता है stop trying. When you accept the defeat, जब अपनी हार को जो है accept कर लेते हो. She was a very strong girl. She was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उसका एक ही determination था कि उसको normal life lead करनी है, spend करनी है और अपने music के interest को continue करना है. Pursue का meaning होता है to continue. So she did not lose her hope. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. अब एक दिन उसने नोटिस किया, एक गर्ल को देखा उसने who was playing xylophone and decided, उसी समय उन्होंने डिसाइड कर लिया that she wanted to play it too, कि उन्हें भी xylophone प्ले करना है. अब xylophone का पिक्चर यहाँ पे दे रखा है. You can see it very clearly. It is a musical instrument with a row of wooden bars of different lengths. So she decided to learn to play xylophone. Thereafter, most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. अब यहाँ पे बताया गया कि उसके जो टीचर्स थे, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, उन्होंने उसको डिस्करेज किया, मतलब उसको मोटिवेशन नहीं दिया, बल्कि उसको ये कहा कि शी कैन नॉट लर्न एनीथिंग एज शी इज़ अ डेफ गर्ल. लेकिन वन अमंग देम,
अ percussionist. Percussionist होता है a musician who plays the drum, tabla, etc. So this man Ron Forbes spotted her potential. उन्होंने उसके पोटेंशियल को स्पॉट किया मतलब आइडेंटिफाई किया. He began by tuning 2 large drums of different notes. Don't listen through your ears, he would say. अब उन्होंने उसको ट्रेन करना शुरू किया. What did he do? He began, उन्होंने शुरू किया by tuning 2 large drums to different notes. 2 लार्ज ड्रम्स लेके उन्होंने उनको डिफरेंट नोट्स पे बजाना शुरू किया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से. और इवलिन को कमांड किया कि उसको अपने कानों से नहीं सुनना है. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. कानों से सुनने की कोशिश भी नहीं करनी है, बट ट्राई टू सेंस इट मीन्स टू फील इट सम अदर वे. इस म्यूजिक को सुनने की कोशिश करो, नॉट थ्रू योर ईयर्स बट सम अदर वेज. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अब वो कह रही हैं कि जो हायर ड्रम, जो हायर नोट्स की जो साउंड थी, शी कुड फील दो साउंड्स फ्रॉम द वेस्ट अप पार्ट ऑफ हर बॉडी. उनकी बॉडी का जो वेस्ट से, कमर से ऊपर का जो हिस्सा है, वहाँ पे वो हायर ड्रम साउंड को फील कर पा रही थी. एंड फ्रॉम द लोअर वन शी कुड फील द lower drum sound. Means from the waist down part she could feel the lower drum sounds. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया कई टाइम तक और बहुत जल्दी ही इवलिन ने ये जाना कि शी कुड सेंस, वो समझ पा रही थी अलग अलग नोट्स को अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. Here she says that now she had learned, अब वो सीख चुकी थी, to open her mind and body, अपनी mind और body को open रख के sounds और vibrations को feel करना. The rest was sheer determination and hard work. sheer का मतलब होता है complete. तो वो कह रही हैं कि जो बाकी सब हुआ वो हुआ उनके complete determination की वजह से और उनके हार्डवर्क की वजह से. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. अब वो कह रही हैं कि जब उन्होंने ये सक्सेस अचीव कर ली, उसके बाद में उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा या कभी भी अपनी डिसेबिलिटी को गौर नहीं किया. शी toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life. अब एक बार उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में. ऑर्केस्ट्रा होता है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, उनके साथ में वो यूनाइटेड किंगडम गई. बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब वो 16 ईयर्स की हो गई, देखिए 11 ईयर्स की एज से उनको ये प्रॉब्लम क्लियरली ओपन हो गई थी, डिस्क्लोज हो गई थी. बट बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. 16 ईयर्स की एज में उन्होंने ये सोच लिया था कि नाउ शी इज़ गोइंग टू मेक म्यूजिक हर लाइफ ओनली. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. Audition का mean है give a short performance so that the director could decide whether she was good enough. So audition दिया उन्होंने Royal Academy of Music में admission के लिए and then she scored. History of the Academy में जो highest marks जो थे उनमें से ही एक score इवलिन ने अटेन किया. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. अब उन्होंने अपनी इस अचीवमेंट से और इंस्पायर होते हुए, मोटिवेट होते हुए ऑर्केस्ट्रा में काम करना ड्रॉप करके सोलो परफॉर्मेंसेस देना स्टार्ट कर दिया. एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स एंड व्हेन she had completed her 3-year course at the Royal Academy of Music London. She had captured most of the top awards. Music के जो most of the top awards हैं, she had captured them. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और एक और surprising बात है कि अपनी hearing disability के होते हुए अपने determination से, hard work से जो उन्होंने achieve किया, वो इसको एक heroic achievement नहीं मानती हैं. वो ये नहीं मानती कि उन्होंने कोई बहुत ब्रेवरी का काम किया है या कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए उनकी अलग से तारीफ की जाए. शी सेज इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. कि कोई भी इंसान अगर उसे ये पता है
कि उसको कहाँ जाना है और वो हार्ड वर्क करता है, देन यू विल गेट देयर, तो वो आसानी से वहाँ पहुँच सकता है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इसी तरीके से वो भी उस टॉप पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ some 1000 instruments and hectic international schedule। कहाँ पे पहुँच गई वो? She reached, she got the most sought after, sought after का मतलब होता है desired, जिसकी desire, जिसकी इच्छा सबके मन में रहती है। So she turned into a percussionist with the mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। Intriguing का मतलब है fascinating, means it is very lovable to watch Evelyn function so effortlessly। देखिए इस पिक्चर में भी शो किया हुआ है कि कैसे Evelyn अपने काम में पूरी तरह से deeply involved हैं। So it was always a great feeling to watch Evelyn working so effortlessly without hearing। She was unable to hear, but she played instruments, musical instruments effortlessly। In our 2-hour discussion, she never missed a word। अब यहाँ पे जो राइटर हैं इस चैप्टर के, उनका जो कॉन्वर्जेशन चला एवलिन के साथ में, वो ये कह रही हैं कि हमारा जो 2-hour कॉन्वर्जेशन जो रहा उसमें शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मतलब जो भी राइटर ने उनसे पूछा, शी कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल। वो उनके बातों को बिना सुने ही बहुत अच्छे से समझ पाई और अच्छे से आंसर किया। Men with bushy beards give me trouble, she laughed। She here is Evelyn। Evelyn कहती हैं men with bushy beards। bushy का मतलब हम लगा सकते हैं कि thick beards। तो वो ये कहती हैं कि जो men जो हैं जिनकी beard बहुत thick होती है, उनके साथ में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। और ऐसा कहते हुए she laughed। It is not just watching the lips, it is the whole face। Now she says that she could understand the people। कैसे वो समझ पाती थी लोगों को? Not only by watching the lips but by the whole face and especially the eyes। She speaks flawlessly with a Scottish lilt। Now the writer says that she always speak flawlessly, मतलब without a fault or a mistake। With the Scottish lilt, Scottish lilt मतलब Scottish accent, Scottish way of speaking। तो यहाँ पे राइटर कह रही हैं कि वो बहुत ही अच्छे से without making any mistake she could speak with Scottish accent। My speech is clear because I could hear till I was 11। अब इसका क्रेडिट भी वो खुद नहीं ले रही हैं। She is saying that कि मेरी ये जो speech clear है, इसका रीज़न है कि I was okay, I was completely well, I was able to hear till I was 11। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। अब यहाँ पे राइटर कह रही हैं कि ठीक है, उन्होंने अपनी स्कॉटिश लिल्ट के लिए तो एक आंसर दे दिया कि व्हेन शी वाज 11 तब तक उन्होंने सब चीज़ें सीख ली थी, इसलिए उनका स्कॉटिश एक्सेंट जो है वो इतना प्रॉपर है। बट व्हाट अबाउट फ्रेंच एंड जैपनीज़, ये 2 लैंग्वेजेस जो उन्होंने सीखी, इन पे जो उनकी मास्टरी थी, इनको जितनी अच्छी तरह से उनको सीखा, हाउ डिड शी मैनेज दैट? इट इज़ रियली एस्टॉनिशिंग। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। पॉर इन का मतलब है यहाँ पे फ्लो करता है, फ्लो इन। वो कहती हैं कि म्यूज़िक जो है वो मेरी पूरी बॉडी में, बॉडी के हर पार्ट में फ्लो करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। टिंगल जो है ये इसका मतलब है अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। टिंगल का मतलब है एक छोटा सा सेंसेशन जो आपको फील होता है कई बार। उसी तरह से वो कह रही हैं कि म्यूज़िक जो है इसका सेंसेशन मेरी पूरी स्किन में फील होता है, मुझे मेरी चीक बोन्स में एंड इवन इन माई हेयर। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। अब वो कह रही हैं कि जब वो xylophone प्ले करती हैं तो साउंड को सेंस कर पाती हैं वो, जब वो साउंड स्टिक से उनकी फिंगर टिप्स में मूव करता है।
ठीक। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, अब ड्रम्स की साउंड को वो कैसे समझती थी? शी कैन फील द रेजोनेंसेज, रेजोनेंस का मतलब है एकोज ऑफ साउंड, अगेन वाइब्रेशन, कि जो ड्रम की जो एको जो होती थी वो उसके ऊपर लीन करके, ड्रम के ऊपर बेंड होकर उसको रियलाइज करती थी, एंड देन शी कुड फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. Now it is told that she always performed on a wooden platform. And before the performance, she would remove her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. वो शूज़ रिमूव कर देती थी और वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती थी, जिससे कि उनके पैरों से लेग्स तक वो वाइब्रेशन को फील कर सकें. नॉट सरप्राइजिंगली, इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. नाउ इट इज सेड दैट इट वॉज नॉट अ बिग सरप्राइज बिकॉज इवलिन ऑलवेज डिलाइटेड, शी ऑलवेज डिलाइट्स हर audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year. अब उनको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, दैट वाज सोलोइस्ट ऑफ द ईयर. शी गॉट दिस अवार्ड इन द ईयर 1991. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. Now, the percussionist, master percussionist James Blade, a statement made by him, he says that God may have taken her hearing. James Blades कहते हैं कि God ने उनकी hearing power को ज़रूर take away कर लिया, but He has given her back something extraordinary. लेकिन उस एक normal hearing की power को लेने के बाद God ने जो उनको दिया, that is something extraordinary. What we hear, she feels. वो ये कहते हैं कि जिस चीज़ को हम सुन पाते हैं, she can feel that far more deeply than any of us. और हम में से हर किसी से ज़्यादा डीपली वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाती हैं, फील कर पाती हैं. That is why she expresses music so beautifully. और यही वजह है जिसकी वजह से वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती हैं. इवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic. वर्कaholic का मतलब होता है अ पर्सन हु फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब एक ऐसा आदमी जिसको काम में डूबे रहना बहुत अच्छा लगता हो. सो वो ये कहती हैं कि शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क. शी सेज कि मुझे सिर्फ काम करना है. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, कई बार तो क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं उनसे भी हार्ड वर्क करना है. बट द रिवॉर्ड्स आर अनॉर्मस, लेकिन वो कहती हैं कि इस हार्ड वर्क के रिवॉर्ड जो उन्हें मिले हैं वो भी बहुत लार्ज हैं. अनॉर्मस मीन्स लार्ज. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. नाउ इट इज़ टोल्ड दैट अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, मतलब जिसके लिए उनको पे किया जाता था, शी वॉज पेड फॉर द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, उसके अलावा इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल. प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में भी इवलिन फ्री कॉन्सर्ट्स दिया करती थी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और इसके साथ साथ वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी यंग म्यूजिशियन की क्लासेस के लिए, टू ट्रेन द यंग म्यूजिशियंस. एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड for deaf children says she is a shining inspiration for deaf children. Anne Richlin जो belong करती हैं Beethoven Fund for Deaf Children, वो ये कहते हैं कि she is a shining inspiration for deaf children, कि जिस तरह का हार्ड वर्क और डिवोशन उन्होंने शो किया वो डेफ चिल्ड्रन के लिए एक ब्राइट इंस्पिरेशन है. They see that there is nowhere that they cannot go. दे का मतलब है कि वो बच्चे जो डेफ हैं वो ये समझते हैं, वो अब ये जानते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते. एवलिन ग्लेने हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. यहाँ पे ये बताया गया कि इवलिन ने ऐसी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स अटेन कर ली हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े काम कर लिए हैं जो उनकी ट्वाइस एज, मतलब उनकी डबल एज, उनसे दुगनी उम्र के लोगों ने भी नहीं किया होगा.
She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. उन्होंने ऑर्केस्ट्रा का जो एक रूल होता है कि परकशनिस्ट जो होते हैं वो एट द बैक ऑफ द ऑर्केस्ट्रा होते हैं, मतलब परकशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम एंड जाइलोफोन, दीज आर पुट एट द बैक ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. लेकिन उन्होंने अपने हार्ड वर्क से परकशन इंस्ट्रूमेंट को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में लाया एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और ये करके दिखाया कि परकशन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये कितना मूविंग हो सकते हैं अगर आप इनके साथ पूरे हार्ड वर्क के साथ में और पूरे इमोशंस के साथ में काम करें. एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि ऑर्केस्ट्रा में जो लाउडर साउंड प्रोड्यूस करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें कि परकशन इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उनको एट द बैक या फिर साइड्स में रखा जाता है और सॉफ्टर साउंड्स प्रोड्यूस करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को आगे रखा जाता है. लेकिन इवलिन ने ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि percussion instruments can also be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. जो लोग भी physically handicapped हैं उनको उन्होंने inspiration दिया है. People who look to her and say, if she can do it, I can. जो भी लोग उनकी तरफ देखते हैं, they get filled with motivation and they say कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. कि बहुत से लोगों को बहुत सी खुशियाँ उन्होंने दी हैं. फाइन, सो वी हैव डन विद दिस चैप्टर. हियर आई हैव ब्रॉट सम इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर यू ऑल. You all must go through all the questions, and if there is any problem, please put your doubt in the comment box. Thank you all. Please like the video and don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon to get the upcoming notifications.